esteemed audience, I feel very grateful to have interaction with Dr. Shiv Kumar Sarin Saab. He is one of the pioneer in the medical field, and I really feel, sir, no amount of appreciation can do justice with your greatness, softness, kindness, generosity. Dr. Shiv Kumar Sarin is a specialist in medical gastroenterology with a rich experience of 47 years, over 47 years, and is a currently director and Sir Chancellor of the ILBS University. You are, just I say earlier, you are pioneer in clinical innovation, a gifted teacher, and a hybrid with great insight into basic and clinical research. So first of all, I would like to know that today it has been seen that increasing level of liver disease. What the reason behind it? Thank you for inviting me. Oh, sir, it's my greatness. And I must first say that I have seen this issue and the previous issue of Double Helical, and it is a great magazine done with great care. Yes. And you have got some very nice people into the program, into the magazine, and very educative, very updated, and thank you. That's my. The problem of liver disease was always there. Even 2000 years before Christ, in the temples, there were no busts of god and goddesses, only liver was kept. Right. The importance of liver in the 2000 years before Christ, Babylonian times, was maximum. And why was it there? People knew it is the center of the body. Heart is only discovered 400, 500 years. So liver is the seat of your body, main pillar, fulcrum, And also largest organ. largest organ of the body. Yeah. So if you are not careful about your liver, it can become bad. It is a very tolerant organ. Till a lot of time, what you eat or what you drink, liver can tolerate. But after a while, it revolts. And the common three causes for increasing liver illnesses, one is that patients or people are obese, overweight, so there is extra fat in the liver. Two is alcohol, unfortunately. And three is no knowledge of viruses like hepatitis B and hepatitis That way it C. is ABC. It's the real cause ABC, alcohol, hepatitis B and C. C. And lastly, which is also increasing, is the non-judicious use of drugs. I see. Slight problem, take a painkiller, take antibiotic, which is a very bad thing. And all these drugs also go to herbal preparations, the preparations for bodybuilding, all these, everything goes to the liver. So the common problems now, increasing liver illness, is because of fat, alcohol, and viruses. Sir, do you think up to 50% of individuals with underlying the liver disease have no symptoms? I would say many more. Many more. Yes, 70 to 80% of the liver must be damaged before symptoms will come. Even if you have 30%, 25% remaining liver, you can still manage without symptoms. So therefore, I would not say that people should have symptoms to get the liver check. You must know whether your liver is healthy, and you don't march towards an illness. Then it's very difficult to recognize and identify the problems. Yes. So I how will would you sort simply, out? I will simply sort out. If I can convince you, I can convince many people. So normally the liver has less than 5% of its total weight as fat. Suppose you have a 1500 gram liver, so the fat should be less than 5%. But if it becomes 10% or more, then it is a fatty liver. Means there is a lot of fat in the liver.
And how does it occur? Partly because you have excess calories, you have more deposits than expenditure to your genes, father, mother. कहते हैं ना, सब पानी भी पीता है तो घी लगता है. So this is a fact that some people are born with such genes, their family history. So now what happens with fatty liver? I will clearly, simplify things for you and the listeners. So if there is 10% and more of fat, slowly what happens? The liver cells are swollen, the body immunity, the white cells of the body say, oh, these are not good cells. WBC. So they will kill the liver cells with fat. So slowly there is damage, what we call hepatitis, fat induced hepatitis. Then to heal the hepatitis there is a scarring. जैसे हाथ जल जाए तो आपका स्कार बन जाता है, तो लिवर भी जब वो सेल्स की डेथ होती है जो कि फैट वाले सेल्स हैं तो स्कारिंग हो जाती है. धीरे धीरे ये फाइब्रोसिस, सिरोसिस बन जाता है. सिरोसिस इज ए स्टेज ऑफ स्कार्ड, shrunken liver, and then it leads to formation of cancers in the liver. So this is the journey, one side of the liver disease, which is the commonest. And today in the world, 1.5 billion people are having, and in India, more than 250 million people have fatty liver disease. So 1 in 3 Indians, मतलब भारत में अगर आप देखें तो 3 में से 1 व्यक्ति के लिवर में फैट है. तो ये पेंडेमिक से भी ज़्यादा है. तो सबसे पहला कॉज एक्सेसिव फैट. नाउ ये फैट और क्या करती है, इसको भी मैं आपको बताऊं. बिल्कुल. जैसे लिवर का सेल है, जी जी, उसके अंदर फैट इकट्ठी हो गई तो इंसुलिन नहीं घुसती. आपने खाना खाया, उसको हजम करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है. पर अगर लिवर के अंदर फैट है तो इंसुलिन नहीं जाएगी. तो क्या होगा, बॉडी को और इंसुलिन बनानी पड़ेगी, फिर और इंसुलिन बनाएगी. धीरे धीरे पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वो ख़त्म हो जाएगा. यू गेट डायबिटीज़. डायबिटीज़ इज द लिवर डिजीज. इज देयर एनी कोरिलेशन विद? यस. जैसे आज फैटी लिवर है तो 10 से 15 साल बाद डायबिटीज़ होने का खतरा है. या डायबिटीज होने के बाद भी खतरा है? डायबिटीज़ हो इसका मतलब तो फैटी लिवर है ही. अगर डायबिटीज़ है तो लिवर में फैट है ही. इट इज अलार्मिंग. 90% ऑफ डायबिटिक्स विल हैव फैट इन द लिवर बिकॉज इट इज़ अ लिवर डिजीज. फिर क्या होगा, डायबिटीज़ हुआ, फिर लिवर में फैट ज़्यादा है, वो कहाँ जाएगी? आप गए बाज़ार में, आपने टेस्ट कराया, अरे भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मेरा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है. आपने फट से गोली खा ली, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, कम आ गया. पर कभी ये नहीं सोचा कि कोलेस्ट्रॉल आया कहाँ से, ये ट्राइग्लिसराइड आया कहाँ से. जब लिवर की लिवर फैट से भर जाएगा, क्रूड लैंग्वेज में लिवर में एक्सेस फैट होगी, वो ब्लड में आ जाएगी. तो आपने ब्लड टेस्ट कराया तो जिन व्यक्तियों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनका ट्राइग्लिसराइड हाई है, उनका लिवर फैटी है, तय है बढ़ना. तो डायबिटीज. फिर क्या होता है, ये फैट जाती कहाँ है? जिनके आर्टरीज पे वो फैट जमा हो जाएगी, आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर, तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा. फिर क्या होगा, वो हार्ट में जाएगी, आपको हार्ट डिजीज़ हो गई. फिर इसी तरीके से एक एक ऑर्गन पे फैट चढ़ती जाती है. तो शुरुआत जो आपका मूल कारण है, द crux, the core is extra fat in the liver, which is the cause of all non-communicable diseases like diabetes, hypertension, heart disease. तो इसलिए लिवर की बीमारियां, अब इस बात के ऊपर साइंस ऑलमोस्ट क्लियर है कि लिवर के कारण ही ये सारी बीमारियां, अगर लिवर से फैट निकाल दें तो हो सकता है ये सारी बीमारियां कम. तो इस पे अभी क्लिनिकल रिसर्च चल रहा है? नहीं, रिसर्च नहीं, ये तो नेचर के पेपर्स हैं, साइंस के पेपर्स हैं, बहुत एडवांस्ड साइंस है. और इसीलिए भारत. इट मींस यू मीन टू से दैट फैटी लिवर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम. यस, दिस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021. एंड आई थिंक यू ऑलरेडी फर्स्ट स्टेटेड. Yes.
So before starting the system, what is your research? How? So first let me tell you, in 2021 these facts and data from all over the world were given to the Government of India, and the Health Ministry, DGHS, they accepted. So fatty liver screening became part of the national screening program for non-communicable disease. This is the first thing in the world. Okay. In the world there is no program where you screen fat and then you screen diabetes and blood pressure. So now Government of India is very active, and all other countries like Egypt, Brazil, Europe, they are all following this model of removing fat, and the science is so good in it. Now people believe that we should have less than 10% fat. लेकिन डॉक्टर साहब एक बात कहीं सुनी है कि आज के टाइम में आप कहीं भी जगह से आप ऑर्गेनिक भी लाएं, इनऑर्गेनिक फूड खाएं, हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है। तो आज इंसान आखिर खाए क्या? प्रॉब्लम तो है, आप वीट खाइए तो ग्लूटामिन है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू व्हाट शुड बी ईट टू गेट द प्रॉपर हेल्दी। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि घर की महिला खाना बनाए। आप जो है ना वो एडिबल फूड लेते हैं, आप कभी देखते हैं कि खाने में पड़ा क्या है? कुछ भी नहीं देखते। कुछ मजबूरी पहले ज़माने में वो जीरा कितना है, घी कितना है, आपका आटा कितना, सब बराबर से बन के आता। वो गृहिणियों को पता होता था। गृहिणियों को पता, वो गृहिणी नहीं। तो इसलिए अब आप ऑर्डर करते हैं, बना हुआ आता है, पर क्या डलता है और क्या मिर्च मसाला है, क्या एडल्ट्रेशन है, पता नहीं चलता। तो इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं कि शरीर के लिए घी सबसे अच्छा है। फुल फैट घर का देसी घी सबसे अच्छा है लिवर के लिए, rather than market। और ऑयल्स वगैरह से तो पचाना ज़रूरी है, खाने में बुराई नहीं है। अच्छा सर, ये कहा जाता है कई लोग टीटोटलर होते हैं, कई लोग टीटोटलर नहीं होते हैं, अल्कोहल का एडिक्टेड होते हैं अल्कोहल लेने का। दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपका क्या निष्कर्ष है, किसको कितना ज़्यादा चांसेस है लीवर का प्रॉब्लम? अल्कोहल का डायरेक्ट टॉक्सिन है। अल्कोहल इज ए सोशली एक्सेप्टेड पॉइजन। Thanks. You're great. I really appreciate your. It is the most socially accepted poison. So don't mind. Also apply to doctors. Yes, it applies to doctors. And this poison really poisons the organ which handles alcohol is liver. I see. The alcohol does not need to go to intestine. Even in the stomach it is absorbed and metabolized by the liver. So alcohol के कारण liver damage, ILBS में आज की तारीख में 48%, 48% admissions are due to alcohol. आज से 30 साल पहले हो सकता है साल के अंदर 20-50 मरीज आ जाए। अब अगर हम लोग 1 लाख मरीज से ज़्यादा देखते हैं तो आधे मरीज़ जो है वो अल्कोहल वाले। तो ये हालत हो गई है, और इसका प्रचलन यंग लोगों में, लेडीज़ में इतना हो गया है। जो यंगस्टर लेडीज़ हैं, जो एमएनसी में काम करती हैं, उनका एक फैशन हो गया है सिगरेट, अल्कोहल विद सिगरेट। और सिगरेट भी लिवर को ख़राब करती है, पर वो एक अलग बात है। तो अब अल्कोहल जो है वो डैमेज के 3-4 कारण हैं। एक तो चेंज इन सोसाइटी वैल्यूज़, फ्री अवेलेबिलिटी, एंड थर्ड, अगर आप के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक है, तो वो आदमी थोड़े ड्यूरेशन का अल्कोहल, थोड़ा अल्कोहल लेगा पर डिजीज़ ज़्यादा होगी। आप समझे इस बात? जैसे एक 25 साल का आदमी आया, उसको बड़ी एडवांस है, 24 साल का था, उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है अल्कोहल वाले को। भाई क्यों करना पड़ रहा है? 12 साल का था जब से ड्रिंक शुरू कर दिया। फिर उसके पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ था और मदर को हाइपरटेंशन था। तो अगर आप ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जहाँ पे ये चीज़ें हैं और आपने शुरुआत कर दी, तो 7-8 साल में ही लिवर पैकअप कर देता है, एंड देन यू नीड ए ट्रांसप्लांट, एंड कुछ देने वाला नहीं। ये हिंदुस्तान में बहुत प्रॉब्लम है, डोनर जल्दी मिलते नहीं है, क्योंकि वो तो लिविंग डोनर है। और जगह तो कैडेवर के कारण डोनेशन मिल जाते हैं कि भाई कोई डेथ हुई, कोई एक्सीडेंटल हुआ तो लोग अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं।
भारत में इसका डोनेशन का बहुत कम है। अच्छा सर, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक पकड़ा अभी, सिगरेट का असर होता है लीवर पे। हाँ। वो कैसे? सिगरेट से एक प्रोडक्ट होता है TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, राइट। TNF अल्फा। ये एक तरह से बॉडी को इन्फ्लेम करता है, सोजिश देता है। तो सिगरेट से लंग में भी इंजरी होती है, उतनी ही इंजरी लिवर के अंदर लिवर भी पे पैदा करता है। तो अगर शराब पी रहा है और साथ में सिगरेट भी ले रहा है तो करेला और नीम चढ़ा, तो वो ज़्यादा फैटल होता है। बाधा फैटल। किसी हालत में नहीं उसको अलाउ करते। हर एक को टोबैको और हर एक को सिगरेट का त्याग करना सर, कहा जाता है कि आपका मेडिकल फील्ड में, मेडिकल एक फैटर्निटी में बहुत बड़ा नाम है फॉर योर आउटस्टैंडिंग जॉब, और आपने बहुत काम किया, रियली अप्रिशिएबल। दैट आई स्टेट फर्स्ट बट बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू कि नो अमाउंट्स ऑफ एडमिशन कैन जस्टिफाई योर काइंडनेस, टी ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये देखिए, हिंदुस्तान में बड़ी उम्मीद के साथ ILBS में आते हैं बहुत सारे शहरों से, छोटे शहरों से, मेट्रो सिटी से, लेकिन एक जब उनकी वो एक्सट्रीम स्टेज पे आते हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, इनको लिवर ट्रांसप्लांट करना है, लेकिन उस समय वो मायूस होकर जाते हैं जब उनको डोनर नहीं मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे पैसिफाई करना चाह रहे हैं, कैसे उसको ईजी करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना है, या आपके पास कोई सोल्यूशन है या उस पर कोई विचार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, स्पेन में करीब 1 मिलियन लोगों में 67 लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं, 67। अब हो सकता है 80-90 हो गए। भारत में 0.067, 1 मिलियन में कोई डोनेट करने वाला नहीं। इसके पीछे क्या सोचते हैं कि मानसिक माइंडसेट कि भाई जैसे मैंने अपनी किडनी डोनेट कर दी तो अगले जन्म में मैं बिना किडनी के पैदा होऊंगा। अरे भाई उनका माइंडसेट नहीं बदलता। अरे मैंने अपना ऑर्गन अपना डोनेट कर दिया तो मेरे को जलाएंगे तो आधा शरीर जलेगा, पूरा नहीं जलेगा। एक मिथ है उनके साथ। पर दूसरी तरह के लोग होते हैं। हमारे यहाँ एक वर्कर था, जब बिल्डिंग बन रही थी, उसकी बच्ची थी 16 महीने की, बच्ची गिर गई, माँ ऊपर काम कर रही थी, बच्ची गिर गई, तो हमने फटाक से उसको ट्रॉमा सेंटर में भेजा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। पर ट्रॉमा सेंटर में लगा कि साहब नहीं बचेगी। तो हमने उसके पेरेंट्स को कहा, बल्कि उसी ने कहा कि सर अब बच्ची तो नहीं बच रही है, इसके ऑर्गन डोनेट कर दें। 16 महीने की बच्ची से एक 4 साल का बच्चा था जो लिवर ट्रांसप्लांट का वेट कर रहा था, उसका जीवन, और उसकी दोनों किडनी मिला करके एक 43 साल के आदमी के जो डायलिसिस पे था, 2 किडनी लग गई छोटी छोटी। Then we must appreciate their parents. तो ये सोचना कि साहब छोटी बच्ची है, वो मर गई है तो डोनेट नहीं कर सकते। या 80 साल का व्यक्ति, डॉक्टर कलाम हमारे चांसलर थे ILBS के, उन्होंने डोनेट किए अपने ऑर्गन, हमारे यहाँ विल करके गए कि अगर मैं कुछ हो जाए तो मेरे ऑर्गन्स दे देना। उन्होंने अपना जो है डोनर यहाँ पे किया। तो एज इज़ नॉट ए बार, ओनली माइंड सेट। तो मैं कहूँगा हर व्यक्ति को सोचना है कि भाई मैं मरने के बाद अपने ऑर्गन्स ऊपर लेके नहीं जाऊँगा, यहाँ ही जल जाएंगे। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा DNA कभी नहीं मरे, मेरा DNA हमेशा चलता रहे, तो मैं अपना ऑर्गन आपको दे दूंगा। आपके जो बच्चे होंगे उनमें वो DNA चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। एक सोच बन गई है, धारणा बन गई है। तो हम चाहते हैं कि लोग ये समझें कि मैं कैसे अमर हूँ। तो आपको लगता है ये माइंड सेट को क्लियर करना बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए? तो अगर मैं हमेशा अमर होना चाहता हूँ तो इमॉर्टल होना, अमर हो, इमॉर्टल तो मेरे ऑर्गन्स को डोनेट करूँ, इससे किसी न किसी के फॉर्म में वो चलता है। फिर भी सर जो गवर्नमेंट अभी जो आप कह रहे हो कि साहब कमी को कैसे पूरा करें, तो मैं ये कहूँगा कि US वगैरह में जहाँ ऑर्गन थोड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कैडेवर प्रोग्राम है, वहाँ भी 100 में से करीब 2 लोगों को ऑर्गन्स अवेलेबल हो पाते हैं, ज़्यादा को नहीं। भारत में मैं कहूँगा हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 1000 में से जैसे 2,50,000 व्यक्तियों को साल में लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, 2.5 लाख को, और मिलते हैं करीब 2,500 से 3,000 ट्रांसप्लांट होते हैं। इंडिया में क्या फिगर है? 3,000 जो हैं वो भी सारे डोनेशन नहीं हैं। कैडेवर डोनेशन मुश्किल से 300, 250, बाकी सारे लिविंग डोनर प्रोग्राम। दिस इज डाटा ऑफ द US। दिस इज डेटा, नहीं ये इंडिया का डेटा है। इंडिया का कि डेटा। भारत में भी जो आप ऑर्गन डोनेट करते हैं वो लगभग टोटल ट्रांसप्लांट का मुश्किल से 5 से 10%। वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है ज़्यादा,
लोगों को Cost is पैसे one- भी नहीं होते हैं कि वो लीवर ट्रांसप्लांट कर पाए। आफ्टर कॉस्ट इज अनदर फैक्टर, कॉस्ट है, पर वो फिर भी लोग, सरकारें, बहुत सारी सरकारें उसमें सपोर्ट करती हैं। दिल्ली सरकार है, राजस्थान सरकार, तमिलनाडु सरकार, बहुत लोग ट्रांसप्लांट में, बट फाइनली ऑर्गन नहीं होता। तो इसलिए बहुत तो दिक्कत ये एक है, चुनौती है हमारे पास, चैलेंजेस बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी तो चुनौती आप है। लोग एक अपने लेवल पे इसके लिए कुछ प्लानिंग कर तो रहे हैं? कई बार हम लोग इसका अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बट सक्सेस नहीं होता, क्योंकि जब लोगों को लगता अरे यार आज तो ये हमारा है, ट्रांसप्लांट करना है, कहीं से डोनर ढूंढ लो, खरीद लो, कभी तो सर कहीं भी आप लोगों ने कभी बीइंग ए चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, कभी आप लोगों ने ऐसी प्लानिंग की स्कूल बच्चे के साथ ये आपका एक इंटरेक्शन हो और उनके जो 11वीं 12वीं वाले जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको समझाया जाए? क्योंकि अक्सर ये देखा है स्कूल से ही, चूँकि उनके घर में आप साहब, ये फ्रिज बिल्कुल। में दारू रखा रहता है और पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एडिक्शन होती है, तो आप लोग उनको बहुत समझाने की करते कोशिश हैं। करें। ILBS का तो ये मेन आउटरीच प्रोग्राम, हमने एक प्रोग्राम चलाया था हैप्पी स्कूल, HEPI, हेपेटाइटिस एजुकेशन एंड प्रिवेंशन इन स्कूल। दिल्ली के करीब 1200 तो टीचर्स को ट्रेन किया, करीब 350 प्रिंसिपल्स को ट्रेन किया, और हर साल हम 4 दिसंबर को प्रोग्राम करते हैं हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे। सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, येलो रिबन लगाते हैं, मार्च करते हैं, प्रोग्राम्स हैं। हमारी जो मैरी कॉम है वो एम्बेसडर है उसकी, अच्छा। बॉक्सर जो है वो आके कहती है हेपेटाइटिस हारेगा, भारत जीतेगा। तो हम करते हैं, पर फिर भी एक ड्रॉप है, सब लोगों को करना है, सारी कंट्री में करना है, हम अकेले लोगों के करने से नहीं होगा। एक और प्रोग्राम हमने चलाया बहुत बड़ा, स्माइल्स। अच्छा, स्माइल्स प्रोग्राम जो है वो 18 से 25 साल के यंगस्टर्स के लिए। इस प्रोग्राम में 1 मिलियन स्टूडेंट्स को हम लोग स्क्रीन कर रहे हैं, 1 मिलियन, कि उनमें से कितने रेड लाइट में हैं, मतलब ओबीज हैं, अनहेल्दी हैं, बीपी हाई है यंग बॉयज़ का, कितने येलो लाइट में हैं, कितने ग्रीन लाइट में। तो स्ट्रॉन्गर इंडिया थ्रू मिलियन स्टूडेंट्स इज़ द स्माइल्स प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं। अभी दिल्ली में करीब 4000-5000 कॉलेज के लड़के हैं, बाकी UGC इस प्रोग्राम को चला रही है। तो हम चाहेंगे कि सारे लोग इसमें स्माइल्स में, इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू है, फिर उसके बाद में इंटरेक्शन है कि भाई आप कैसे ठीक हो। बिल्कुल। एंड यू विल बी सरप्राइज कि इस यंग एज में करीब 17 से 18% के बीपी है। Yes. मतलब इस यंग एज में Great. 17-18% के कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो हम लोगों का यही एम है कि भारत के अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कम हो, और कम होने के लिए लिवर में फैट नहीं हो, और हाँ, शराब विदेशियों को पिलाएं, भारत में नहीं पिलाएं। एक सर बहुत बढ़िया गजल है, पंकज उदास ने गाया, पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हिंदुस्तान से दारू, ये जो अल्कोहल का ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ, चूँकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्सेज है ये। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जैसे, हम जैसे लोगों का क्या दायित्व बनता है कि हम एजुकेट करें, और किसी को तो आप चाह कर भी नहीं सुना, आप जैसे नहीं फ़र्क पड़ता है। देखिए, सिगरेट पीना कम हो गया, टीबी जो है कम होएगी, क्योंकि लोगों को मालूम है कि लंग कैंसर है सिगरेट से, बहुत फ़र्क पड़ा है उसका। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे होता है। कैलाश सत्यार्थी जी यहाँ आए थे, अच्छा, और जो हम नोबेल लॉरिएट हाँ। कैलाश सत्यार्थी, और उन्होंने अल्कोहल के ऊपर पूरा मिशन हम लोगों के साथ जुड़ गए। अब ज़ोरों से काम होगा कि साहब लिवर को बचाना है, अल्कोहल को दूर रखना। ये भी WHO ने भी ये कहा है कि अगर आप थोड़ा भी अल्कोहल लेंगे तो लिवर के लिए खराब। तो पंकज उदास वाली बात गई मैं उससे सहमत नहीं हूँ। पियो लेकिन थोड़ा रखो हिसाब। पड़ोसियों को, विदेशियों को पिलाओ, देश में अपने खाने के लिए सत्तू है, बहुत बढ़िया चीज़ है, सत्तू ले लीजिए आप, घर का काला चने मुझे का तो अच्छा लगा आप सत्तू को पहचान है, No, no, सत्तू no. है ग्रेट क्वालिटी। ILBS में दावत जिगर है, एक अलग मेन्यू है, जिगर के लिए क्या अच्छा खाना है, ऐसे 21 आइटम है, उसमें सत्तू तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग तो सत्तू को बहुत महत्व देते हैं। मिलेट्स, सत्तू इज ए मेन फूड ऑफ द बिहार। यस, यहाँ तो बिल्कुल सत्तू चलता है और मिलता है लोगों को। सत्येंद्र सत्तू भी चलता है। अच्छा सर, जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बिलियरी यूनिवर्सिटी को
काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाने का आपका प्लान है, सपना है ड्रीम है, टू एजुकेट द पीपल, टू एजुकेट द रिसर्चर्स इन द हायर स्टडीज़। तो उसके लिए अभी आपका क्या प्रयास चल रहा है? व्हाट आर द आइडियाज और द एक्सपेंशन प्लान? देखिए, ILBS तो कलेक्टिव एफर्ट है और हम लोग तो बहुत छोटे से स्मॉल यूनिवर्सिटी से भी स्मॉल में हैं और 12 साल हुए हैं। पर हाँ, एक एक जो यहाँ से पास होता है वो काफ़ी अपने आप में एक विजिटिंग कार्ड होता है। अच्छा। कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, नेशनल लेवल ब्रांड पर बन जाता है। ब्रांड बन जाता है। और वो एरिस्टोटल की जो भाषा में कहें दैट सम इज बिगर देन द टोटल। राइट, नॉट मैनेजर सोशल एनिमल। नो, सम इज बिगर देन द टोटल, मतलब 2 और 2 4 होते हैं। पर हम कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ 4 पढ़ाने वाले हैं तो जो स्टूडेंट पास हो उन चारों के कलेक्टिव नॉलेज से भी बेटर हो, खाली मेरे से बेटर नहीं हो। तो ये सिद्धांत हमारा, क्यों हम लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करते हैं कि द स्टूडेंट इज ए रिफ्लेक्शन नॉट ऑफ वन पर्सन बट ऑफ ए डिपार्टमेंट एंड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इस बेसिस पे एक्सपेंशन तो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, पर क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं। तो जैसे आपने 190 बेड से शुरुआत की थी, टारगेट था 500 बेड तक लाए, उसमें कहाँ तक आप लोगों ने कहा? लगभग 300 के ऊपर पहुंच गए हैं। 500 तक का क्या टारगेट? 500 धीरे धीरे हो जाएंगे, पर एडमिशन्स बहुत होते हैं, सारे मरीज बड़े सिक होते हैं। अच्छा। तो सब लोग, यही एक हॉस्पिटल है जो 6 डेज फुल 6 डेज काम करता है और सब 5.5 दिन करते हैं। 6 डेज काम करता है, 24/7। आपकी व्यस्तता ज़्यादा होती है, सुबह से ले आपसे तो बात करना भी मुश्किल होता है, आप इतने बिजी होते हैं और अच्छा लगता है कि काम किया जा रहा है, फालतू के नहीं बैठे। सर, चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जर्नी कैसी हुई? कहाँ से आपने कहा इतना साउंड एकेडमी का आपका कैरियर है, तो थोड़ा सा हमें भी बताएं ताकि हम लोग भी अपने बच्चों पे याद करें कि तुम इसी तरह पढ़ाई करो और डॉक्टर सरीन का एक प्रतिमूर्ति बनो। नहीं, ऐसा मेरा कुछ प्रतिमूर्ति नहीं, पर हाँ एक छोटा सा सिद्धांत पिताजी ने दिया था। अच्छा। छोटा था वो, उस ज़माने में लाख बहुत बड़ी चीज़ होती है, 1 लाख रुपये। तो उन्होंने कहा था 1 सेकेंड कॉस्ट 1 लाख रुपीज़। राइट। स्पेंड इट फॉर योर सेल्फ, don't spend on I others. think you are graduated from Sawai Madhav Singh. Yes, Jaipur, SMS Medical College. Then after you joined All India Institute. Then I joined All India Institute. So how was your blend? How you get your dreams comes true? God's grace. I have not any special talent except to work. Okay. And no, you have talent. We can realize it. No? And the students teach us a lot, and I think मुझे लगता है कुछ हाथों का हुनर होता है, जो मैजिक स्टिक होता है, वो एक टैलेंट से ही आता है, एक तजुर्बे से ही आता है, एक दिन रात के मेहनत परिश्रम से ही आता है। तो उसको देखते हुए कुछ क्या कहना चाहेंगे कुछ आने वाले हमारे जो प्रोजेनी है, जो यंगस्टर्स हैं, कि आप भी इस तरह फील्ड में काम करो ताकि आप समाज के लिए कुछ अपने नाम को सेटअप करो? मरीज़ आए वो खुश होके जाए, और अगर आपको नहीं आता हो तो दूसरे की सलाह ज़रूर ले लें। ये नहीं सोचें कि मुझे सब आता है, किसी का नुकसान नहीं। और हाँ, हर मरीज में जहाँ लगे कि मुझे नहीं आता, ज़रूर पढ़ लें, पूछ लें, सीख लें। उसको भूले नहीं कि साहब मेरे में ये कमी है, तो शायद आगे अच्छा अगर कमी हो तो उसको समझने की कोशिश करें। और हाँ, बी ए परपीचुअल स्टूडेंट, लर्नर, एंड टेक डिसीजंस। अगर एक टैलेंटेड डॉक्टर के लिए आपके अनुसार क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नो हिज लिमिटेशंस। ओके। लेकिन आजकल जो, सॉरी टू, मैं थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहा हूँ, डोंट माइंड, जैसे अभी मशरूम हो रहा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, उनके ऊपर एक बर्डन दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनके कारण वो अपने टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखते। कहाँ क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कोई भी अपने टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। अगर आपकी मेडिकल एथिक्स, मेडिकल जो टीचिंग है, उसमें हमें थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूरी है। अगर आप वाइट कोट पहन रहे हैं तो वाइट कोट तभी मिलता है जब आप एथिकल हो। बिल्कुल, इसलिए वाइट है, ये कलर वाइट, इसलिए दैट्स व्हाई इट्स वाइट। तो
मैं बाकी और लोगों को क्या उचित लगेगा, क्या ठीक लगेगा, ये नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू शुड सी यार मैंने सबका अच्छा ही किया है, किसी का बुरा नहीं, और अगले दिन इससे और अच्छा हो कोई मरीज़ बेटर एंड बेटर। बेटर, मेरे स्टूडेंट्स मेरे से बेटर हों, तभी मैं टीचर हूँ, नहीं तो मैं टीचर नहीं। थैंक्स ए लॉट। एक बहुत सुखद जर्नी थी इंटरव्यू की। अब मैं अपने आप को वाइंड अप कर रहा हूँ, और डॉक्टर साहब से भी ऑलवेज टेक द सजेशन एडवाइस फॉर द फैटर्निटी ऑफ द सोसाइटी एंड फैटर्निटी ऑफ द मेडिकल ऑल्सो टू। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।